Good morning, everyone. So, in chapter 5, algebraic expressions, exercise 5.3, we have started. Question 3, A, B, C, D parts we have done. E part was left. So, E part is subtract 13ab minus 4a square plus 7b square from 3a square minus 7b square plus 8ab square. Okay. So, what you have to do, you have to subtract the first polynomial from the second one. Okay, so I told you the polynomial which is written after from which will it will be written at the first place, because इसमें से हमको माइनस करना है. ओके, जिसमें से माइनस करना होता है that will be written at the first place. So it will be 3a square minus 7b square plus 8ab square. It is the first polynomial minus the polynomial which is to be subtracted. किसे subtract करना है? So it is plus 8ab. So the other is 13ab minus 4a square plus 7b square. Okay, so the polynomial from which we have to subtract I have written at the first place, and the polynomial which is to be subtracted I have written at the second place. Now the second step, we have to open these brackets. 3a square minus 7b square plus 8ab minus 10 will get multiplied with these three terms. 13 is positive, plus minus will be minus, it will be minus 13ab. 4 is negative, minus minus plus, it will be 4a square. 7 is positive, plus minus will be minus 7b square. Okay, now write like terms together. For 3a square, the like term is plus 4a square. For minus 7b square, the like term is again minus 7b square, and these are written together already. AB and AB same variable parts, hence they are like terms. 8ab minus 13ab. Now we will solve them. A square will come as it is, 3 plus 4 is 7. B square will come as it is, minus 7 and minus 7 both are having same sign, they will get added. 7 plus 7 is 14, but the number is having minus sign, so it will be minus 14b square. Okay, then in the third one, AB is the variable part, I am writing it as it is. Plus 8 minus 13, both the numbers are having opposite signs, they will get subtracted. 13 में से 8 जाएगा, it will be 5, but the number which is greater, that is 13, is negative, so answer will be minus 5. Okay, so it will be 7a square minus 14b square minus 5ab. The solution for this E part is that. Okay, now next question is question number 4. In question number 4, you have to combine like terms to simplify each expression. मतलब जितने भी expressions आपको दिए हुए हैं उन्हें आपको simplify करना है, but कैसे simplify करना है, आपको उनकी like terms को combine करके लिखना है, then you will simplify it. The A part is 4x minus 3x plus 1. ठीक है, ये एक ही algebraic expression दिया हुआ है, आपको इसको further सिर्फ solve करना है. यहाँ पे addition या subtraction का नहीं है कि अलग अलग algebraic expressions आपको दिए हुए हों उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है विद साइंस. ठीक है, एक ही पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिख करके और आपको इसको सॉल्व करना है. जस्ट इतना ही करना है जो हम पहले करते आए हैं. द सेम थिंग वी विल डू हेयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x माइनस 3x, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, 4x एंड 3x. तो लाइक टर्म्स को कंबाइन करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने. प्लस 1 विल कम एज इट इज, इट विल बी 4x माइनस 3x, दोनों लाइक टर्म्स हैं, x वेरिएबल पार्ट है, ये एज इट इज आएगा. 4 माइनस 3 विल बी 1, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी x. यस, गुड कशिश. x प्लस 1, सो इट विल बी x प्लस 1. द आंसर फॉर दैट इज x प्लस 1. ये बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें ये है कि आपको पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, जो हम ऑलरेडी करते आए हैं अब तक. D पार्ट इज 3xy प्लस 2yz plus 7zx minus 3xy plus 5yz plus 2zx. This is the D part. In this question also
यू हैव टू राइट लाइक टर्म्स टुगेदर। तो पहले तो लाइक टर्म्स फाइंड कीजिए। 3xy, 3xy के लिए लाइक टर्म क्या है, जिसमें xy वेरिएबल पार्ट हो। इन दिस xy एग्जिस्ट, नो, इट इज zx, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है। ये देखिए xy, यस, -3xy, गुड रक्षा, -3xy विल बी दी लाइक टर्म फॉर दैट। इनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। 2yz, ये स्क्वायर नहीं है बेटा, ये z है, ठीक है। 2yz, 2yz के लिए लाइक टर्म क्या होगी, जिसमें y और z दोनों प्रेजेंट होंगे। देखिए, यस, +5yz, 5yz विल बी दी लाइक टर्म फॉर 2yz, ओके, इट्स सिंपल। देन 7zx, 7zx जिसमें z और x दोनों ही प्रेजेंट होंगे, यस, गुड अनिका, इट विल बी +2zx, ओके। So this will be the third pair of like terms, ठीक है, it's very simple. So now you can see xy minus xy, it will get 0. 3xy minus 3xy, both terms are same, one is positive, one is negative, क्योंकि 3 minus 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म विल बी 0, इट इज 0 into xy, ओके, प्लस yz, the variable part I have written as it is, 2 plus 5 will be 7. Then zx, the variable part will come as it is, 7 plus 2 is 9. So this will be the answer. The answer is 7yz plus 9zx. Okay, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि उसने बोला हुआ है आपको क्वेश्चन में कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करके लिखना है। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो मे बी आपके मार्क्स कट जाएं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया हुआ है आपको उसी तरीके से करना है। अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को, तो आपको लाइक टर्म्स को एक साथ लिख के दिखाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख दें सॉल्व करके, ओके। डी पार्ट वी हैव डन, नाउ ई पार्ट। ई पार्ट इज 4x minus 9y minus 6x plus 12y. This is the fourth part. It's also very simple. 4x का like term क्या होगा यहाँ पे, you will tell me now. Minus 6x will be like term for 4x. एक साथ लिख दिया दोनों को. Then minus 9y के लिए like term, it will be, yes, good Tina, it will be plus 12y. Good Shaurya, good students, you are replying. मीन्स आपको लाइक एंड लाइक टर्म्स अच्छे समझ में आ गए हैं। -9y के लिए 12y विल बी दी like term, okay. Now we will solve it. X will come as it is x. 4 minus 6, it will be -2, okay. 4 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 में से 4 जाएगा, इट विल कम 2, बट 6 क्योंकि बड़ा डिजिट है, बड़ा नंबर है, एंड इट इज नेगेटिव, सो इट विल बी -2. देन y विल कम एज इट इज -9 + 12, दोनों के ही साइन नेगेटिव है, सॉरी दोनों के ही साइन ऑपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 - 9 विल बी 3, एंड द नंबर दैट इज बिगर मीन्स 12, इट इज पॉजिटिव, सो आंसर आएगा पॉजिटिव, सो -2x + 3y विल बी द आंसर फॉर दैट, ओके। सो क्वेश्चन 4 वी हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखा है माइनस अदर पॉलिनोमियल लिखा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस साइन है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड में we have to just open these brackets open करने हैं, and then we will write like terms together and we will solve them, okay. So write the first polynomial, it will come as it is, -10 a cube b plus 12 a square b square minus 6 a b cube, okay. फर्स्ट पॉलिनोमियल मैंने एज इट इज लिख दिया। सेकंड पॉलिनोमियल में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन है, तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके -8a³ b, 6 पॉजिटिव है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन -6a² b²। बेटा डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, टर्न ऑफ योर स्पीकर्स।
9 अगेन नेगेटिव है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 9ab क्यूब. ओके, नाउ वी विल राइट लाइक टर्म्स टुगेदर. -10a क्यूब b. सो ए क्यूब बी कौन सी टर्म है जिसमें ए क्यूब बी आ रहा है? देखिए यहाँ पे ए बी क्यूब भी लिखा है और ए क्यूब बी भी लिखा है. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स. पावर्स देखनी है आपको. ए की पावर 3 है, यहाँ ए की पावर 1 है, तो ये आपस में लाइक टर्म नहीं है. हमें वो टर्म देखनी है जिसमें ए की पावर 3 हो. ठीक है, यहाँ पे देखिए -8a³ b. ए की पावर 3 है, बी की पावर 1 है. बेटा वीडियो हो जाएगा क्लियर आपको, आप ध्यान से सुन लीजिए. आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी मे बी, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर जा रहा है वीडियो. प्लस सेकेंड टर्म इज 12a² b². अब हमें वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें वेरिएबल पार्ट हो a² b². यस, गुड अनिका. इट विल बी -6a² b². थर्ड टर्म जो फर्स्ट पॉलिनोमियल की बच गई वो क्या है? -6ab³ -6ab³. ab³ के लिए लाइक टर्म क्या होगी? +9ab³. दोनों के वेरिएबल पार्ट सेम है, a की पावर 1 है और b की पावर 3 है, दोनों में ही. सो दीज टू आर लाइक टर्म्स. नाउ वी विल सॉल्व देम. a³ b लाइक टर्म है, वेरिएबल पार्ट सेम है, एज इट इज आएगा. -10 -18 दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और क्योंकि बड़ा डिजिट क्या है 10, उसके आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, देन a² b². इन दोनों लाइक टर्म्स में वेरिएबल पार्ट सेम है, एज इट इज लिख दिया. 12 - 6 विल बी +6. बड़ा डिजिट क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर में भी पॉजिटिव आएगा. अगेन देखिए ab³, यहाँ पर भी दोनों ही साइन ऑपोजिट है. 9 - 6 विल बी +3. ओह शिट. ओके, सो देखिए -6 + 9 दोनों के साइन ऑपोजिट है, इट विल बी 3. सब्ट्रैक्ट होंगे तो, और क्योंकि 9 बड़ा डिजिट है तो उसका साइन पॉजिटिव है, तो आंसर में भी पॉजिटिव. सो दिस विल बी दी आंसर फॉर दैट. नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास वर्क. आई विल टेल यू होमवर्क नाउ. होमवर्क फॉर टुडे इज 29 September, exercise 5.3, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 का आपको करना है बी एंड सी पार्ट. बी एंड सी पार्ट. एंड क्वेश्चन 5 का आपको करना है सी पार्ट. ओके, क्वेश्चन 5 में बेटा यहाँ पे ए पार्ट हमने क्लास वर्क में कर लिया है, सी मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है. कल इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बी पार्ट, वी विल कवर इट इन टुमारोज क्लास. ओके,